Good morning to all of you. So today we are going to study the second part of cleft lip and cleft palate. In the last class we had studied the definition of cleft lip and cleft palate. We had studied the causes, why is it caused. We had studied the sign and symptoms, and I had told you that the only solution for this is surgical management, and we had studied what are the different types of surgical management depending on the type of defects the baby is having. Now we are going to study the second part, in which we will be basically concentrating on the nursing management of cleft lip and cleft palate. Now these are the general feeding guidelines. Okay, so now by now you must be knowing that we are confronting with two types of babies. ठीक है, दो babies हमारे पास है, तीन टाइप के. वन इज आइदर उसका सिर्फ क्लेफ्ट लिप है, या तो उसका सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट है, और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. ठीक है. सो अगर सिर्फ क्लेफ्ट लिप है तो ज़्यादा फीडिंग इश्यूज नहीं है, स्पेशली इफ इट इज़ यूनिलेटरल. ठीक है. बाईलेटरल है तो फीडिंग इश्यूज आ सकते हैं, बट समहाउ इट कैन बी मैनेज्ड. बट if it is a combination of cleft lip and cleft palate, the feeding problems are more. It is very difficult to feed the baby. Okay. Now these are the general feeding guidelines. Okay. First is keep the baby upright when feeding, and gravity will help the milk out of the nose. ठीक है. अभी तक हम क्या सिखा रहे थे कि suppose if the mother is breastfeeding, then the baby is not to be kept upright. Okay. पर यहाँ पे बिठाकर, upright का मतलब क्या है, बिठाना का पोजीशन. ओके. सो when you feed the baby has to be kept upright. Okay. तो इससे फ़ायदा क्या है, gravity will help the milk to keep out of the nose. हम लोग ने लास्ट टाइम पढ़ा था that in cases of involvement of the floor of the nose, what happens is जब फीड करते हैं तो नाक से मिल्क बाहर आ जाता है. ओके. बट इफ़ यू कीप द बेबी अपराइट, बिठा के पिलाने से फ़ायदा क्या होगा, ग्रेविटी से नोज की ओर नहीं जाएगा. सो दैट इज अ रीजन. सेकेंड इज एम द निपल टुवर्ड द पार्ट ऑफ अ पैलेट दैट इज रूफ ऑफ द माउथ दैट डज नॉट हैव द क्लेफ्ट. ओके. अभी मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के बॉटल्स बताऊंगी. ओके. सो द निपल ऑफ द बॉटल हैज़ टू बी डायरेक्टेड टू दैट पार्ट ऑफ द पैलेट. पैलेट मतलब रूफ. मैंने लास्ट टाइम आपको सॉफ्ट पैलेट क्या है, हार्ड पैलेट क्या है, ऑल दिस थिंग आई हैड शोन यू बाय डिफरेंट स्लाइड्स. ओके. सो निपल किस तरफ रखना है, दैट डज नॉट हैव द क्लेफ्ट. ओके. जहाँ पे क्लेफ्ट नहीं है वहाँ पर यू हैव टू कीप द निपल टुवर्ड्स द पार्ट ऑफ द पैलेट दैट डज नॉट हैव द क्लेफ्ट. मतलब जहाँ पे डिफॉर्मिटी नहीं है वहाँ पे जहाँ पर डिफॉर्मिटी है. ओके. sorry, excuse me, that does not have the cleft. जहाँ पे डिफॉर्मिटी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ रूफ ऑफ द माउथ, एक साइड में क्लेफ्ट है. ओके. क्लेफ्ट मतलब वहाँ पे ओपनिंग है, दैट इज क्लेफ्ट पैलेट, और मे बी द रूफ ऑफ द नोज इज मिसिंग. सो यू हैव टू एम द निपल टुवर्ड्स नॉर्मल साइड. नॉर्मल साइड मतलब जहाँ पे क्लेफ्ट नहीं है, देयर यू हैव टू फिक्स द निपल टुवर्ड्स दैट साइड. So what you need to observe is the baby should develop a sucking and swallowing pattern. ठीक है. क्या है sucking swallowing? Watch for 3 sucks followed by a swallow and then a breath. ठीक है. बेबी का कैसा फीडिंग होना चाहिए, 3 sucks, 3 बार sucking the baby will do, then followed by swallow, and फिर बेबी सांस लेगा. ठीक है. इस टाइप का एक sucking and swallowing pattern the baby should develop. Gradually the baby will develop this type of pattern. Okay. नेक्स्ट इज बर्प your baby often, every half to 1 ounce. ठीक है. बर्प मतलब डकार दिलाना. ओके. हाफ मीन्स इट इज 15 ml, 1 ounce इज 30 ml. ओके. ठीक है. सो एवरी हाफ टू 1 ounce, 15 to 30 ml में you have to burp the baby. Why? Because the baby swallows more amount of air. बर्पिंग का फंक्शन क्या है, whatever air the baby swallows by doing burping, we are expelling the air. ठीक है. डकार दिलाने का काम वही है. ओके. नाउ दिस इनिशियली feed the baby every 2.5 to 3 hours, and total 8 to 10 feeding in a day has to be done. फीडिंग 30 मिनट से ज़्यादा लास्ट नहीं करना चाहिए. शुरू में the baby will take more time, but gradually the baby will learn, and the time taken for feeding will gradually be reduced.
Now is what is the nursing management? Okay, so first is nursing assessment. In nursing assessment, a complete and thorough process of care should be undergone with a newborn with cleft lip. Okay, now ये normal baby नहीं है, so your assessment has to be a good one. Okay, one primary concern in the nursing care of newborn with a cleft lip and cleft palate is the emotional care of newborn's family. ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी, मैंने आपको पिछले क्लास में आई हैड शोन यू डिफरेंट स्लाइड्स रिलेटेड टू अपीयरेंस ऑफ अ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं व्हाट अ ग्रेट इमोशनल शॉक इज देयर फॉर द पेरेंट्स व्हेन दे सी such a baby. Okay, so emotional care of newborn's family the nurse has to give. Okay, now first is interview. In interviewing the family and collecting data, the nurse must include exploration of the family's acceptance of the newborn. ठीक है, nurse को क्या चेक करना है? To what extent the baby has been accepted by the family. ठीक है, वो कैसे पता चलेगा? By talking with them. Okay, so और क्या क्वेश्चन पूछना है? अबाउट द मेथड्स दे फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव इन फीडिंग द इन्फेंट्स. देन यू हैव टू आस्क अबाउट हाउ आर दे फीडिंग द इन्फेंट, what is the most effective methods and what do they feel about the most effective method. ये आपको पूछना है. Next is a physical examination. See, this is a normal this is a newborn, so apart from the routine newborn care we have to focus on cleft lip and cleft palate. Okay, so we need to assess what is the temperature, apical pulse, respiration. TPR सभी babies का लेते हैं. We take this. apical pulse क्यों लिखा है? Because that is the way how we take for a newborn. Okay, breath sound सबको सुना है, that is very important. ये चेक करने के लिए कि बेबी एस्पिरेट तो नहीं कर लिया. ओके, सो देर आर चांसेस फॉर एस्पिरेशन, so that is why we need to listen to the breath sounds. Then is observe the skin turgor and color to find out whether the baby, if feeding issues are there, the baby might be dehydrated. So that is why हमको चेक करना है कि उसका स्किन टर्जिडिटी आपको मालूम होगा. मैंने डायरिया का क्लास लिया था जिसमें मैंने बताया था वी हैव अ स्किन पिंच टेस्ट. अगर वो पिंच 2 सेकेंड के बाद नॉर्मल पोजीशन में आते हैं, इफ इट इज टेकिंग मोर देन 2 सेकेंड्स, उसका मतलब इट इज अ सिवियर डिहाइड्रेशन. फिर हमको कलर देखना ये देखने के लिए whether the baby is cyanosed or not. Okay, then you have to assess the infant's neurological status. Assess करने के लिए we have a neurologic scale that is called as Ballard scale. Okay, जब हम लोग assessment of newborn पढ़ेंगे then we will study how to assess, because that is a completely different topic. Okay, but that there is a way how we assess the neurological status, and we also note whether the baby is alert and whether the baby is responding. Okay, all these things we have to check. Now these are the nursing diagnosis. Compromised family coping related to visible physical defect. Okay, the family coping is compromised. Why? Because the parents are seeing in front of them a baby who has a visible defect. Visible defect मतलब ऐसा defect जो दिखने में दिखता है. ठीक है, एक ही ये ग्रुप में एक ही डिफेक्ट है जो नहीं दिखता है, दैट इज ओनली क्लेफ्ट पैलेट. सपोज इफ द बेबी इज हैविंग ओनली क्लेफ्ट पैलेट तो सामने से नहीं दिखेगा. इफ द बेबी इज क्राइंग देन यू कैन सी, अदरवाइज नहीं दिखेगा. बट इफ इट इज अ क्लेफ्ट लिप एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ नोज, ऑल दीज थिंग्स कैन बी directly seen. Okay, next is anxiety of family caregivers related to child's condition and surgical outcomes. See, the word surgery itself is a great source of stress even in case of adults. पर यहाँ भी क्या है, एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसके डिफेक्ट्स है. नाउ the healthcare providers are telling कि उसका ऑपरेशन ही सोल्यूशन है. ठीक है, now this causes a great anxiety. Okay, great anxiety to family members. Why? Because they are concerned about the child's condition and also about the surgical outcome. सर्जिकल आउटकम मतलब मैंने आपको पिछले क्लास में बताया, एक बार के सर्जरी से नहीं हो पाएगा. सपोज इफ इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट, एटलीस्ट 2 सर्जरीज में भी रिक्वायर्ड, 3rd में भी रिक्वायर्ड फॉर द डेंटल इश्यूज. ठीक है, तो ये सब सर्जरी करना है. ये सब सुन के द पेरेंट्स बिकम वेरी एंशियस. ओके, नेक्स्ट इज डेफिशिएंट नॉलेज ऑफ फैमिली केयर गिवर्स रिलेटेड टू केयर ऑफ चाइल्ड बिफोर सर्जरी एंड द सर्जिकल प्रोसीजर. सो in surgery the parents may not be knowing how to take care of the child, how to feed,
all these things. Okay, we will be studying what has to be told to the parents. Next is there is a risk of aspiration related to reduced level of consciousness after surgery. Okay, there is a risk of aspiration, especially in the post-operative period. Now this remaining nursing diagnosis is ineffective breathing pattern related to anatomical changes. अगर आपको याद होगा, I had shown you pictures of the baby where there was problem related to this palate, okay, and there is involvement of the floor of the nose. ऐसे में breathing pattern भी असर हो जाएगा, ठीक है. So ineffective breathing pattern might be there. Then risk of deficient fluid volume related to nil orally after surgery. Okay, सर्जरी के बाद कुछ घंटे तक the baby cannot be given fluids, so there is risk of deficient fluid volume. Then naturally pain is there. Any surgery always will have pain, so acute pain related to surgical procedure. Okay, next is risk of injury to the operative site related to newborn's desire to suck thumb or fingers and the anatomical changes. Okay, now there is risk of injury to the anatomical site. आपने newborn babies को देखा होगा. So what they do is as soon as they feel hungry, ये लोग babies, newborn babies क्या करते हैं, अपनी उंगली को या अपने thumb को they will take it inside the mouth and start sucking. Okay, so so that is the desire of the newborn. ठीक है, and anatomical changes, and depending on the anatomical changes, the baby will like to touch. Because earlier there was a cleft lip, but after the cheiloplasty you will finding the baby finds that there is some change in the lip, there is some change in the nose. So these are the risk of injury to the operative site. So these are the different nursing diagnoses. Okay, now what are the nursing care planning and goals? Goal setting and planning must be modified to adapt to the surgical plans, and these are the major goals. पहला है maintaining adequate nutrition, and because of feeding issues है, surgery है, ये सबको ध्यान में रखते हैं हमको क्या देखना, the nutrition of the baby has to be maintained. Second is increasing family coping. Okay, so after that initial shock is over, help the parents to understand that these defects are not uncommon, मतलब ये common है, और साथ में सर्जिकल मेथड्स आर अवेलेबल. अगर आपके पास फोटोग्राफ से आप दिखा सकते हैं बेबीज हु आर हैविंग अ क्लेफ्ट पैलेट और सर्जरी के बाद वो कैसे दिख रहे हैं, ये सब दिखा सकते हैं. सो दिस कैन इंक्रीज द फैमिली ग्रुपिंग. यू कैन इवन इफ यू हैव any contacts with those babies who had cleft palate but now they are comfortably going to school, their feedings are they are not having any feeding issues. ऐसा कोई baby कोई family होगा तो you can even give their phone number and this family can have a talk with them, and once ऐसे families बात करते हैं तो this will be a great solace, मतलब बहुत मदद मिलेगा. ठीक है. Next is reducing the parents' anxiety and guilt regarding newborn's physical effect. Sometimes parents may feel guilty कि अरे ये देखो हमारे कारण बेबी का ये सब हो गया. So we have to reduce the patient's anxiety, और उनका guilt जो है वो आपको कम करना है. And preparing parents for the future repair of cleft lip and cleft palate. And then you need to prepare the parents. Now is नर्सिंग इंटरवेंशन, दैट वाज द गोल. अब इंटरवेंशंस क्या क्या है? फर्स्ट इज मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन. ओके, नाउ विच द बेस्ट सॉल्यूशन हियर इज ब्रेस्ट फीडिंग. ओके, सो ब्रेस्ट फीडिंग में बी सक्सेसफुल बिकॉज द ब्रेस्ट टिश्यूज में मोल्ड टू क्लोज द गैप. ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग अगर बेबी कर सकते हो दैट इज बेस्ट. क्यों? तो उससे क्या होगा, द breast will fill the gap, whatever gap is there. But if the baby cannot be breastfed, all the babies will not be able to breastfeed, then EBM has to be given, and then and it has to be used instead of formula. Okay, EBM देना है. EBM मतलब express breast milk देना. Formula feeds are not to be given. ये क्यों? Because breast milk contains all those things which are required, which are required by the newborn baby. प्लस इसमें एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स है. ये बेबी हैज़ टू अंडरगो सर्जरी. द बेबी शुड हैव सफिशिएंट वेट सो दैट उसका हीमोडायनेमिक स्टेटस सब अच्छा हो और सर्जरी के लायक बेबी तैयार हो सकती है. ये सब कब होगा? इफ द बेबी इज बीइंग ब्रेस्ट फेड. अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर पा रहा है, वेल एंड गुड. नहीं कर पा रहा है तो ब्रेस्ट मिल्क हैज़ टू बी एक्सप्रेस्ड एंड देन इट हैज़ बी यूज इंस्टेड ऑफ फार्मूला. उसका मतलब क्या है?
टॉप फीडिंग नहीं देना है, ब्रेस्ट मिल्क ही देना है, ठीक है। नाउ ब्रेस्ट मिल्क देना है तो फिर क्या, EBM देना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैं आगे आपको स्लाइड्स दिखाऊंगी। अ सॉफ्ट निपल विद अ क्रॉस कट मेड टू प्रमोट ईजी फ्लो ऑफ मिल्क में वर्क वेल, ठीक है। तो देन वी नीड टू हैव स्पेशल बॉटल्स, ठीक है। वो कैसा है मैं आपको आगे दिखाऊंगी, ठीक है। नाउ इस पोजीशन, इफ द क्लेफ्ट लिप इज यूनिलेटरल द निपल शुड बी एम्ड एट द अनअफेक्टेड साइड, ठीक है। अगर क्लेफ्ट लिप यूनिलेटरल का क्या मतलब है, एक साइड में क्लेफ्ट लिप है, एक साइड नॉर्मल है, तो निपल शुड बी एम्ड एट द अनअफेक्टेड साइड, मतलब जहाँ पर डिफेक्ट नहीं है वहाँ पर द निपल हैज टू बी केप्ट। नाउ इन्फेंट शुड बी केप्ट इन द अपराइट पोजीशन ड्यूरिंग फीडिंग, ठीक है। बॉटल फीडिंग करते समय दिस कैन बी डन, बट इफ द बेबी इज बीइंग ब्रेस्ट फेड डायरेक्टली फिर अपराइट पोजीशन देना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज this is not possible at all, okay। But if EBM is being given or if bottle feeding is given, then upright position is can 100% be given। अब क्या है हमारे पास टूल्स है, क्या टूल है, फर्स्ट इज लैम्स निपल, ओके। तो ये स्पेशल टाइप के निपल्स अवेलेबल है, दीज आर एक्स्ट्रा लॉन्ग निपल्स एंड स्पेशल क्लेफ्ट पैलेट निपल्स, ठीक है। ऐसा अवेलेबल वी हैव दैट molded to fit in the open palate area to close the gap may be used। ऐसे nipples अवेलेबल है ताकि जो गैप है उसमें ये फिट हो जाएगा, ओके। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट simplest one of the most effective methods may be used by the use of an eye dropper or an aseptic syringe with a short piece of rubber tubing at the tip, ठीक है। nipples अवेलेबल है, और या तो दूसरा एक है इफेक्टिव मेथड, एक और है, वी यूज अ सिरिंज और उसके टिप में देयर इज अ रबर ट्यूबिंग, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक फीडर। मैं आपको इसका दिखाऊंगी ब्रेक फीडर का स्लाइड, ओके। नेक्स्ट इज प्रमोट फैमिली कोपिंग, एनकरेज द फैमिली टू वर्बलाइज देयर फीलिंग्स रिगार्डिंग द डिफेक्ट, एनकरेज द पेरेंट्स टू आस्क, जो भी उनके मन में डाउट है वो आप पूछने दीजिए, और ताकि उनका जो भी चिंता का बात है दैट ऑल कैन बी रिड्यूस्ड। their disappointment मतलब ऐसे बेबी को देख के they are in great anxiety, ठीक है। and serve as a model for the family's caregivers attitude towards the children, ठीक है। and the nurse should serve as a model for the family caregivers attitude towards the child। now see this is break feeder, ये आप देख रहे हैं, these are normal syringe, उसके आगे रबर ट्यूबिंग है। तो व्हाट यू नीड टू गिव इज, ये सिरिंज मुंह में डालो, धीरे धीरे यहाँ से प्रेस कर दो, ठीक है, बिकॉज दिस इज मेड अप ऑफ रबर, तो बेबी का एस्पिरेट करने का चांसेस वगैरह कम रहता है, बट यू शुड नॉट फोर्स द फ्लूइड, ग्रेजुअली यू कैन गिव इट, ओके। सो दिस इज मेड अप ऑफ रबर, तो इसलिए दिस इज नॉट मेड ऑफ प्लास्टिक, दिस इज रबर एंड दिस इज लॉन्ग इनफ, सो दिस कैन बी गिवन। नाउ एक और है जिसको हम कहते हैं हैबरमैन फीडर, सो दिस इज हैबरमैन फीडर, व्हाट यू आर सीइंग इज अ लॉन्ग निपल, ओके। सो दिस इज हैबरमैन फीडिंग। नाउ नेक्स्ट इज रिड्यूस फैमिली एंजाइटी, गिव द फैमिली इंफॉर्मेशन अबाउट क्लेफ्ट लिप रिपेयर्स, ठीक है। अब हमको इंफॉर्मेशन देना, मैंने पिछले स्लाइड में बताया था क्या क्या ऑपरेशन अवेलेबल है, सो जो भी अबाउट क्लेफ्ट रिपेयर्स है दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी गिवन। encourage them to ask questions and reassure them that any question is valid। पेरेंट्स को एनकरेज करना है कि उनके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है लेट देम आस्क, एंड वॉट एवर डाउट्स आर देयर इन देयर माइंड उसको हमको क्लियर करना है, ठीक है। नाउ इज प्रोवाइड फैमिली टीचिंग, एक्सप्लेन द यूजुअल रूटीन ऑफ प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। रिटन इन्फॉर्मेशन इज हेल्पफुल बट बी सर्टेन दैट द पेरेंट्स अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी नॉर्मल एनी सर्जरी रिक्वायर्स प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ये हमको बताना है साथ में। अगर लिखित में ये इंफॉर्मेशन है तो देन दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल, बट इफ़ यू हैव अ रिटन इंफॉर्मेशन, आपको क्या ध्यान रखना है कि उसका लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल आपके पास इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो पेरेंट्स आए हैं दे अंडरस्टैंड ओनली हिंदी, तब आपका लिखित इंफॉर्मेशन मतलब का नहीं रहेगा। सो इफ़ यू हैव अ रिटन इंफॉर्मेशन प्लीज़ इंश्योर कि पेरेंट्स समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना है, ठीक है। नाउ इज इवैल्यूएशन, मेजर गोल्स फॉर द केयर ऑफ इन्फेंट विद क्लेफ्ट लिप मस्ट इंक्लूड, क्या क्या है, मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, सो दिस वी हैव ऑलरेडी evaluate, we have to evaluate in terms of whether the adequate nutrition has been maintained, family coping has been increased,
parents anxiety or guilt has been reduced. So these are the major areas where we need to evaluate. Now is protecting the repair. The palate should be protected from injury about 3 weeks after surgery. ठीक है, जो palate है उसको 3 weeks तक you have to be very careful. Okay, अब क्यों careful रहना है, इसका reason यहाँ पे, there may be no feeling in this area for a while after surgery. ठीक है, जिस जगह में सर्जरी हुआ है वहाँ पे सेंसेशन नहीं रहेगा. ओके, सेंसेशन नहीं होने के कारण the baby can endure because the baby will not be able to feel pain and the baby can endure. तो इसीलिए hard objects should be put away or kept out of the child's reach while the palate is healing. जो भी hard objects है उसको आपको दूर रखना है because babies have a tendency कि वो लोग कोई भी चीज़ मिलता है तो मुंह में लेके जाते हैं. ठीक है, अगर पैलेट इंजरी हो गया सो दिस विल क्रिएट ग्रेट प्रॉब्लम्स. ओके, सो हार्ड ऑब्जेक्ट्स जो है उसको दूर रखने का है. ठीक है, कैन यू सी दिस लोगन्स बो. ओके, ये जो है एक स्पेशल टाइप का बो है विच इज यूज्ड आफ्टर क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट. ठीक है, तो इसके कारण the baby will not be able to injure this area. ठीक है, this is called as Logan's bow. okay, आप ये आर्म रिस्ट्रेंट्स भी देख रहे हैं. दिस इज आर्म रिस्ट्रेंट जिसके कारण बेबी का हाथ मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा तो यहाँ टच भी नहीं कर पाएगा. ओके, सो दिस इज Logan's bow. Now this is how you do the dressing. Okay, attaching adhesive to the cleft lip. Now this mouth care. To clean your mouth, we are basically focusing after the surgery. Okay, to clean the child's mouth and gums, use a gauze pad dipped in plain water or a small amount of mouthwash mixed with water. दो तरीके से कर सकते हैं, या तो प्लेन वाटर से करिए या तो you can have a mouthwash जिसमें पानी थोड़ा मिक्स करके and wipe the front of teeth. बाकी कुछ आपको वाइप करने की जरूरत नहीं है, only the front of teeth. ठीक है, toothbrush should not be used for 3 weeks क्योंकि there are chances for harming the palate. तो इसलिए 3 weeks तक toothbrush यूज नहीं करना. ओके, have your child drink water after eating to keep the mouth clean. तो आपको oral hygiene कैसे ensure करना है? After feeding anything you have to ask the child, we have to give plain water to the child so that the mouth is rinsed. Now drinking and eating. Okay, make sure that the child is drinking enough liquids to stay hydrated. ठीक है, liquid intake has to be done. Okay, और 3 weeks give soft pureed and mashed foods. ठीक है, that have the texture of pudding. ये आपने देखा होगा पुडिंग सॉफ्ट चीज़ रहता है. ठीक है, तो आपको जो भी खाने का दे रहे हैं वो दैट हैज टू बी सॉफ्ट. प्यूरिड मतलब आपने देखा होगा मिक्सी में सपोज इफ यू हैव कोई भी चीज़ को सॉफ्ट करने का दैट इज प्यूरी. ओके, देन इज मैश्ड मतलब स्टीम देकर उसको मैश करना. इस टाइप के फूड्स आपको देना है. डू नॉट गिव फूड्स दैट हैव चंक्स, लम्प्स और पीसेस सच एज सीड्स, ग्रेन, पल्प और स्किन. ये फूड्स आपको कुछ भी फूड, फ्रूट्स, एनीथिंग वी शुड नॉट गिव जिसमें चंक्स, मतलब चंक्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल मैंगो यू हैव कट इनटू पीसेस, तो उसको हम क्या कहते हैं? चंक्स. ऐसा टुकड़ा वाला कुछ नहीं देना है. लंप वाला नहीं देना है. सीड्स, ग्रेन्स, पल्प, स्किन ये कुछ नहीं देना. इस वाला फूड्स को देना ही नहीं है. ठीक है, इसको छोड़कर हार्ड क्रंची फूड सच एज कोल्ड सीरियल, कुकीज, क्रैकर्स, चिप्स ये कुछ भी नहीं देना है. ठीक है, एनीथिंग विच इज हार्ड, एनीथिंग विच इज क्रंची मतलब क्रंच वाला फूड्स भी कुछ नहीं देने का. ठीक है, एंड यू हैव टू यूज ओनली अ स्पून फॉर फीडिंग. Now is the child may drink from a bottle or a sippy cup with a soft spout right after surgery. ठीक है, ऑपरेशन के बाद हो सकता है maybe for a day or maybe for a few hours IV drip will be there, then that is stopped and the baby may drink from a bottle or maybe बस sippy cup. sippy cup मतलब आपने देखा होगा कि छोटे कप में इस टाइप का रहता है ढक्कन जो सॉफ्ट रहेगा and the baby can drink through it without spilling it. तो उसको हम क्या कहते हैं? सिपी का. विद अ सॉफ्ट स्पाउट मतलब वो एरिया जहाँ से बेबी कैन ड्रिंक. सर्जरी के बाद द चाइल्ड कैन ड्रिंक. ओके, डू नॉट लेट योर चाइल्ड फीड हिमसेल्फ. वो चक्कर नहीं करना है. बेबी को खुद फीडिंग के लिए हाथ में पकड़ा दिया वो कभी भी नहीं करना है. बिकॉज वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द पोस्ट ऑपरेटिव साइड फॉर 3 weeks and make sure that the food is not too hot. ज़्यादा गर्म भी नहीं. Why? Because if the food is too hot,
then again burn can be there. So ये this has to be avoided. Now can you see this arm splints? ये दिख रहा है, ये दो स्लाइड्स मैंने इसमें यही लिखा है, ठीक है. दिस इज द लोगन्स बो, ओके, एंड दिस इज आर्म स्प्लिट. देखो यहाँ पे लोगन्स बो निकल गया है, बट द बेबी इज स्टिल हैविंग आर्म स्प्लिट्स. क्यों? ताकि दिस एरिया शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम इंजरी, ठीक है. नाउ द चाइल्ड विल नीड टू वियर आर्म स्प्लिट्स फॉर 3 वीक्स. ये 3 हफ्ते तक ऐसा बांध के रखना है, ठीक है. These splints keep the child from putting his fingers in his mouth and accidentally damaging the repair. ठीक है. So this has to be ensured. Now this activity or play. The child may play as usual but needs to be watched more carefully during the first few weeks after surgery. ठीक है. Playing will continue as it was, but you have to be careful. Then do not let other children give the child things to play with or eat without your approval. ठीक है. In 3 weeks you have to be very careful. The parents should be very careful कि दूसरे बच्चे इस बच्चे को खेलने का कोई सामान ना दे, बिकॉज उनको पता नहीं है क्या देना है क्या नहीं देना है, ठीक है. और खाने का सामान भी दूसरे बच्चों को देने अलाउ नहीं करना है, बिकॉज आपको कैसा वाला फीड देना है, सॉफ्ट वाला. सो डू नॉट अलाउ अदर चिल्ड्रन आइदर टू गिव एनी प्ले आइटम्स और टू ईट विद देम. नेक्स्ट इज सॉफ्ट टॉयज आर बेस्ट. सबसे बढ़िया कौन सा है? सॉफ्ट टॉयज, जिसमें हार्ड कुछ भी नहीं है, उस टाइप के सॉफ्ट टॉयज जो आसानी से दबता हो. सो दैट टॉयज हैज टू बी गिवन टू द चाइल्ड, ठीक है. नाउ इज व्हाट टू एक्सपेक्ट आफ्टर सर्जरी. फॉर अ फ्यू डेज आफ्टर सर्जरी द फॉलोइंग थिंग्स विल बी सीन. क्या रहेगा? देयर विल बी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इन द म्यूकस और सलाइवा स्पिट फॉर सेवरल डेज. बहुत दिनों तक देयर में बी अ ब्लड टिंज्ड स्प्यूटम और सलाइवा. उसका मतलब क्या है? जब भी बेबी स्पिट करेगा तो विल फाइंड कि थोड़ा ब्लड आ रहा है. दिस इज नॉर्मल, ठीक है. दिस विल कंटिन्यू फॉर सेवरल डेज. और म्यूकस और सलाइवा कैसे दिखाई देगा? पिंक दिखाई देगा बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड. देन इज मोर क्लियर ड्रेनेज देन यूजुअल विल कम फ्रॉम द नोज फॉर सेवरल वीक्स. अभी देखेंगे कि पहले सर्जरी के पहले नाक से ज़्यादा कुछ पानी नहीं आता था, बट अभी क्या आ रहा है? देर इज अ क्लियर ड्रेनेज, ओके. ये क्यों है? दिस इज बिकॉज ओपनिंग बिटवीन नोज एंड माउथ इज नाउ क्लोज्ड एंड बिफोर सर्जरी म्यूकस ड्रेन डायरेक्टली टू द माउथ, ठीक है. नोज में जो भी म्यूकस था वो बिकॉज ओपनिंग वाज देयर सीधा माउथ में जा रहा था, पर अभी क्या है? रिपेयर हैज बीन डन. सो वॉट एवर सिक्रेशंस आर देयर दिस माइट कम आउट ऑफ द नोज एंड दिस विल बी अ क्लियर ड्रेनेज. क्लियर मतलब आर पार देखने वाला, पानी जैसा वाला, ठीक है. नेक्स्ट इज द चाइल्ड में स्नोरिंग, नाक से जो आवाज निकालते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ए स्नोरिंग. द चाइल्ड में स्नोर एंड साउंड कंजेस्टेड फॉर सेवरल वीक. ऐसे लगेगा जैसे नेजल कंडीशन इज देयर और सोते समय आवाज भी आएगा. सो बट दिस विल गो अवे व्हेन द स्वेलिंग गोज डाउन एंड देयर इज लेस ड्रेनेज, ठीक है. आपको ही पता होगा जब भी कहीं भी सर्जरी होता है देयर इज ऑलवेज सम सॉर्ट ऑफ स्वेलिंग, देयर इज मोर इंक्रीज अमाउंट ऑफ एक्सुडेट फॉर्मेशन. ये सब नॉर्मल है, ठीक है. सो दीज आर द इश्यूज विच में कंटिन्यू फॉर सम वीक, पर आफ्टर दैट इट विल बी ऑल राइट जब स्वेलिंग ठीक हो जाएगा, ओके. नेक्स्ट इज इट मे बी हार्डर फॉर अ चाइल्ड टू स्लीप एज वेल एज बिफोर सर्जरी, ठीक है. सर्जरी के पहले विल फाइंड कि बेबी वॉज स्लीपिंग नाइसली, पर अभी इसको स्लीप दिक्कत होगा. सो स्लीप हैबिट्स विल रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर सेवरल वीक्स, ठीक है. जब ये पूरा स्वेलिंग सब कंप्लीट हो जाएगा देन द बेबी विल बी एबल टू स्लीप नाइसली, ओके. नाउ व्हाट इज द प्रोग्नोसिस? ऑल्दो ट्रीटमेंट में टेक मैनी ईयर्स, ठीक है. अभी मैंने आपको बताया डेंटल इश्यूज है, पैलेट का है, एक बार में रिपेयर नहीं हो पाएगा. द चाइल्ड में रिक्वायर 2 or 3 सर्जरीज, ठीक है, एंड इट कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके. सो मोस्ट चिल्ड्रन कैन अचीव द नॉर्मल अपीयरेंस, पर आफ्टर दी सर्जरीज यू विल फाइंड. मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखाया था, डिफरेंट स्लाइड्स वेयर आई शोड यू अपीयरेंस बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है. सो दीज कंडीशंस कैन अचीव अ नॉर्मल अपीयरेंस, स्पीच एंड ईटिंग, ठीक है. अपीयरेंस भी नॉर्मल हो जाएगा, बात करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ईटिंग का भी कोई इश्यू नहीं, ठीक है. लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस इज गुड. डेंटल कंसर्न क्या है? डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है भाई, बिकॉज दैट एरिया विल हैव अ मिसिंग और मे बी एक्स्ट्रा और अ मैल पोजिशन टीथ, ओके. डेंटल इश्यूज क्या रहेगा? या तो दांत गायब रहेगा, या तो एक्स्ट्रा दांत रहेगा, या तो मैल पोजिशन मतलब सही पोजिशन नहीं.
तो दे में ऑल चिल्ड्रन विल रिक्वायर ब्रेसेस ऑन दैट परमानेंट टीथ. जब परमानेंट टीथ आ जाएगा तब ब्रेसेस लगाना पड़ेगा. सो दीज आर द डेंटल इश्यूज. कैन यू सी दिस? सी दिस इज प्रायर टू सर्जरी. ये ऐसा था. 4 years after surgery, this is how. See, several years after surgery, you will not be able to even make out that this child has converted to this child. So what you find is appearance is normal, eating, sleeping, everything. So that is why. So this speaks volumes about the prognosis. ठीक है, prognosis कितना बढ़िया है उसके दिखाने के लिए ये slides. Okay. So that was all about cleft palate and cleft lip. I hope all of you have understood the topic which we have conducted in 2 classes. If you have any doubts, please feel free to ask and continue study well. Thank you.